Hi everyone, welcome back to UPSC Aptica. In this video, we are going to discuss previous year questions, trend analysis for research methodology and methods of psychology, Unit 2 and Unit 3 of Paper 1. Before we start our discussion, I have an announcement to make. Psychology के लिए जो research methodology paper 1 का unit 2 and 3 and psychological testing also known as psychometrics which is from paper 2 unit 1. I am launching a course to cover these three units in a comprehensive manner. You will be getting to learn all the concepts in a comprehensive way along with example based learning. Study material will be provided. Guidance with note making will also be provided. There will be separate doubt clearing sessions and of course in live sessions if you have any doubts you can ask that as well. 10 plus years of trend analysis and 3 years of previous year questions will also be discussed along with the questions demand understanding and also the answer content and structure for these questions. The course is available for 1 year and 2 years validity. You can choose what is good for you. Classes will be available in live mode. Also recorded classes will be available after the session. Course is going to start from 15th of December. There will be weekend sessions in the beginning. In the month of February there will be few extra sessions other than the weekend sessions to complete all the 3 units very easily for all of you. It will not be hectic. It will be manageable. If you have any questions you can reach out to me directly. Because I'm launching this course today, I am also providing you all a launch discount which is available only for few seats. Anybody who is interested can use code research and enroll for this course. Join this course for research methodology and psychological testing if you have been struggling with these 3 units so far. I've done my master's from Bangalore University. I have worked on research and psychological testing. I've also presented these research papers in national conferences. I've also been working as research and psychometric consultant. So I do have the first-hand experience of constructing, a full-fledged scale, conducting researches. I'm also guiding a lot of students who are studying in India and abroad in helping in conducting their researches. So definitely it is going to be a wonderful learning experience for all of you, and definitely you can use the code research to avail the discount for yourself. कोई भी doubt हो, कोई भी queries हो, you can either comment it here below the video or you can reach out to me directly. The course is available on Android and iOS app and link for these apps are available in the description. I will also tag the link for the course here for your reference. Let's start our discussion. Methods of psychology syllabus you can see here on this slide, and then we have research method syllabus here on this slide. What I want you to understand is that there are a lot of topics which are overlapping. Here you can see research designs, various methods of data collection. You will find the same stuff here, methods of research, and here types of researchers, various research designs and their characteristics. So there's huge overlap. What you should be trying to understand कि research methodology का जो पूरा process है research conduct करने का, conceptualization से लेकर final analysis stage तक, वो सारा का सारा part ही हमारे syllabus का हिस्सा है. Here are some key takeaways from unit 2 and 3 for you. In the last 10 years, 2 to 5 questions have been asked per year. On average, if we look at it, 4 questions have been asked per year. On average, mandatory questions is very important for us to understand, because see, many times if you are asked optional questions, you have an option to skip it. You can choose another optional question and still manage. And when the questions are put to you in the mandatory section, you have no other option but to answer those questions. So questions which are coming for 10 marks, you have to answer it, right? So on average, they are asking you 2 mandatory questions. If we look at it, for 2015 and 16, they have asked you 1 mandatory question. 2017 and 18, they have not asked you any mandatory question. There have been questions, but these questions were in optional category. But when you look at 2019, they have asked you 2 mandatory questions. 2021 to 2024, every single year, they have been asking you 2 mandatory questions. 2020, there were no direct mandatory questions, but you should remember that they want you to read these units really well and answer these questions. So they had given you 5 questions in 2020, and these 5 questions were placed in the optional questions. So every question, optional question had one research question, which means no matter how you are going to pick those optional questions, you are still indirectly forced to answer at least 2 of the research questions. Now this becomes more tricky. Reason being, there the questions are for 15 and 20 marks, and you should have good knowledge to answer these questions, right? You cannot skip it. So in both the scenarios, I just want you to understand the fact that questions doable हैं. हम unnecessary डर कर अपने मार्क्स जो है लूज आउट कर रहे हैं एग्जाम में. इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो. क्वेश्चन मैंडेटरी में आए या ऑप्शनल में आए, आप दोनों ही तरीके से उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर करके अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो. यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होकर ही आ रहे हैं. क्वेश्चन काफ़ी ईजी नेचर के हैं और बहुत ही डायरेक्ट इनके आंसर्स हैं. आंसर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहते हैं. द क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सिर्फ कुछ गिने चुने क्वेश्चन के अंदर आपको ज़्यादा डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यूज़ करते हो उसकी एप्लीकेशंस बतानी है. बट बाकी क्वेश्चंस में if you have good conceptual clarity, you can answer the question really well. The last part is that how are you practicing your answer writing?
Anyway, for that also we are going to discuss how to manage your answer writing in the course itself, and there are other courses which you can always see. You have been practicing answer writing, so you will be able to understand these things very easily. Most scoring unit or units, reason being that very few people attempt questions which come from these units. ज़्यादातर लोग डरे रहते हैं, वो इसको प्रिपेयर नहीं करते हैं, और लास्ट में जब इस तरीके से क्वेश्चंस का प्लेसमेंट होता है तो दे लूज आउट ऑन मार्क्स. बट क्वेश्चंस अगर ये स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने लगेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में कॉम्पिटिशन पहले से ही कम है. अब गिने चुने बच्चे ही रिसर्च के क्वेश्चंस जो कि लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे, तो आपके ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज अटेम्प्टिंग दोज सिंपल टिपिकल ऑर्डिनरी क्वेश्चंस, बट हियर यू आर पिकिंग समथिंग which people perceive to be difficult, and this is essential part of psychology. If you are answering these questions, there are better chances for you to get more marks. Also, it is straightforward in nature, so if you learn these things, these concepts really well, आप आगे कितनी भी बार इसको easily attempt कर सकते हो. You just need a basic revision, क्योंकि यहाँ पे कोई changes नहीं आने वाले, यहाँ पे current affairs का कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे simple conceptual clarity चाहिए और आपको उसकी applications आनी चाहिए. That is it. आपको अगर इस कोर्स में इंटरेस्टेड है या आप ये चीज़ें सीखना और समझना चाहते हो, अभी तक आपने नहीं कवर किया है, तो आप ये नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. एंड्रॉइड एंड iOS ऐप के ऊपर इसके ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, और लिंक इनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं. यहाँ अब जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो आई वांट यू टू हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. आई हैव हाइलाइटेड द इंपॉर्टेंट पार्ट्स दे आर आस्किंग. यहाँ पर क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है. हियर दे आर आस्किंग अबाउट फैक्टर एनालिसिस. सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन रिसर्च डिजाइन. Factor analysis is a question on statistics part of it, or you can say the analysis part of it. Here again, this is a question on research design. Non-experimental designs क्या है. सिस्टमैटिक स्टेप्स टिपिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है. कंफाउंडिंग वेरिएबल्स भी रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर है, क्योंकि वेरिएबल्स उसी का ही एक हिस्सा है. अब विद इन ग्रुप एंड बिटवीन ग्रुप रिसर्च डिजाइन, इंटरव्यू, डेटा कलेक्शन, वी कैन कॉल इट मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, फोकस ग्रुप डिस्कशन, अगेन इट इज अ रिसर्च डिजाइन. अगेन दिस क्वेश्चन इज फॉर रिसर्च डिजाइन. इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वाइज द प्रिंसिपल 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन, रैंडम असाइनमेंट का, ये भी एक रिसर्च डिजाइन के ऊपर ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करके उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है. अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन रियली वेल. यहाँ पर अगेन एनालिसिस को लेके क्वेश्चन है, बिकॉज दे आर आस्किंग यू अबाउट अनोवा. नाउ इफ यू लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, टिपिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी. डेटा कलेक्शन को अगर ध्यान में रखते हुए बोलना है तो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी यूज कर सकते हो, बट ऑल ऑफ दैट इज अगेन गोइंग टू फॉलो अंडर रिसर्च मेथोडोलॉजी. अगेन रिसर्च डिजाइन, रिसर्च मेथोडोलॉजी. Research methodology is like a segment of the holistic research process. Research design is one category which is falling under research methodology. So ज़्यादातर questions अगर आप देख रहे हो तो research designs के ऊपर ही आ रहे हैं. अब next question, experimental and quasi experimental में difference, research design, two-way ANOVA analysis. अगला आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, ये अलग है, इसको थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं. एक्सप्लोरेटरी एंड कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, एनालिसिस रिलेटेड क्वेश्चन. ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच, रिसर्च डिजाइन. क्वासी एक्सपेरिमेंटल, रिसर्च डिजाइन. Regression analysis, beta coefficient made it a little trickier. Again, brainstorming. It is a data collection method, or method which you are using in order to generate more and more ideas. Qualitative researches में use कर सकते हैं. Keep it as a research method. अभी के लिए आगे बढ़ रहे हैं. Basic and applied research, research design. ठीक है, अलग अलग तरीके हैं रिसर्च करने के लिए. रिसर्च डिजाइन की बहुत बेसिक अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो उसमें बोल सकते हो, और एल्स यू कैन कॉल इट रिसर्च मेथोडोलॉजी. विच मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इन्वेस्टिगेट जेंडर डिफरेंसेस. देखो ये क्वेश्चन जेंडर डिफरेंसेस में भी जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में भी जाता है. यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए रखा है कि किस मेथड को यूज कर आप इस चीज़ को ईजिली स्टडी कर सकते हो. मतलब इन्हीं यूनिट्स का कॉन्सेप्ट लेकर एक एप्लीकेटिव क्वेश्चन डाल दिया. बताना इन द एंड वही है, क्या रिसर्च मेथड, क्या रिसर्च डिजाइन यूज करने वाले हो, हाउ इज इट ईजियर टू स्टडी इट इन अ मोर significant way. Then they have asked you some psychological measures can be reliable but not valid. Again, a very important question. Although if you look at it, this connects really well with your paper 2 unit 1 psychological testing, but it is again valid and applicable in this scenario. So you need to be prepared for these kind of things, wherein if you have good conceptual clarity, you can directly implement all the important key points here and you will be able to score. अब role of hypothesis फिर से पूछ लिया, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी. यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट सिंगल ब्लाइंड एंड डबल ब्लाइंड प्रोसीजर्स अगर आप देखते हो तो यहाँ पर हम लोग टिपिकली बात करें रिसर्च डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर फिर से कुछ टेक्निकल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स की, राइट. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको सारी टेक्निकल टर्म्स अच्छे से आती हो. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट है. ऑब्जर्वेशन दोनों तरीके की पूछ ली, नेचुरल एंड लेबोरेटरी बेस्ड. अगेन इफ यू लुक एट इट, रिसर्च डिजाइन और रिसर्च मेथड यहाँ पर पूछा गया है. नेक्स्ट इज एनालिसिस. हियर अगेन रिसर्च डिजाइन, देन यू हैव रिसर्च मेथड, उसकी सिग्निफिकेंस बेसिकली बतानी है. थ्योरी, हाइपोथेसिस, ऑपरेशनल डेफिनेशन, डिफरेंशिएट करना है, कंपैरेटिव क्वेश्चन है. पर मेनली अगर आप देखो तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं. इन्हीं ये एसेंशियल्स हैं जिनको फॉलो करते हैं हम रिसर्च अपना डिज़ाइन करते हैं. तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में सब आ जाएगा. बहुत ईजी है, जब पढ़ोगे क्लासेस में अपने आप समझ में आएगा. अभी न्यू टर्म्स हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सुन के मुश्किल लगता है, बट डू अंडरस्टैंड. जैसे साइकोलॉजी की यू हैव सो मेनी यूनिट्स, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिट्स वेर यू आर एबल टू रिलेट विद थिंग्स बिकॉज यू आर सीइंग इट इन योर एनवायरमेंट, यू आर ऑब्जर्विंग दोज थिंग्स, एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग्स.
Research is also to a good extent relatable. Examples are available from your own environment. All you need to understand is that how exactly the research methods work, how exactly do we conduct research, what are the things we have to keep in mind. Every question is about that. When you complete the course, you are able to answer every single question which they have asked in the previous year questions. Why I'm discussing questions from 2015 onwards, 10 years of questions are good enough for you to get good clarity about the trends. Also, the nature of questions have shifted a bit, after 2013. So that is why I'm picking standard straight 10 years questions we can discuss and understand. If you look at a lot of questions from, before 2015 also, nothing major is changing, right? In terms of the questions you are seeing now, the similar questions, similar topics have been asked back then as well. The analysis way, the softwares which we used to use, all those questions they were asking back then, but these days they are not focusing on those questions quite a bit. The major focus is on understanding, rather seeing, evaluating you whether you have the basic understanding of conceptualizing or accomplishing a research. Can you really do it? Can you conduct it if you have to? Do you understand the terminology and all of these things? So some degree of application, more of conceptual clarity, some part of interconnection is what they are looking at. If you look at it, almost in every subject, in every question, this is what they're trying to see. Either they're checking you for theoretical, or they're checking you for applicative, or they're checking you for interconnective parts. Sometimes to make it more complex, they will merge two of these together. अगला क्वेश्चन देखो, फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस अगेन. क्या पहले फॉर्मुलेट करनी चाहिए या बाद में? पॉसिबल है कि नहीं है? व्हाट एग्जैक्टली इज द केस? तो अगर फिर से देखो तो हाइपोथेसिस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, रिसर्च मेथोडोलॉजी. डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट अभी हमने पीछे देखा था, सिंगल ब्लाइंड एंड डबल ब्लाइंड. तो ये फिर से रिसर्च मेथोडोलॉजी, टेक्निकल टर्म्स. Experimental bias and all of these terms which you are seeing, I will call them all technical terms for now, just to keep the categorization easy. But we will have to discuss every single thing properly, understand the importance of it, because then only you will be able to put it really well in your answers. Here when you talk about 2024, they are asking you independent, dependent and mediating variables. Variables again research methodology ka part hai. Data collection methods, here you can put actually either research methodology or you can keep it methods of psychology. Data collection के methods specifically पूछ लिया, उसमें observation and survey methods के बारे में पूछा है. 2B ANOVA again analysis. अब अगर आपने ध्यान दिया, ये सभी की लेबलिंग करने में हमको क्या पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे को, वो या तो रिसर्च डिज़ाइन से हैं या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी से हैं. एंड ऑफ कोर्स ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो हम, अगर मैं टिपिकल कैटेगराइजेशन करूँ तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से आंसर करे जा सकते हैं, क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन इसके अंदर आ रहा है. अगर आप लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी को अच्छे से पढ़ के जाओगे, आप सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो जो भी मैंडेटरी में आएंगे या इस तरीके से फ्रेम किए जाएंगे जहाँ पर आपको थोड़ा बाकी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ट्रिक कर दिया है, अभी ऑप्शन नहीं बचा. यू विल स्टिल बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ इट. ऑल ऑफ दीज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स if you are able to understand the technicality of it. अब ये भी देखो, I am not discussing that what approach you have to follow in each and every question here, because if I start doing it, this video is going to be for 2 hours or more, which we cannot do, right? So by keeping it simple, I want you to know, now I've told you what kind of categorization, how these questions have been asked. Marking you can see for yourself. Next thing I want you to see whether this question is a direct question or this question is an applied question. That will also give you a good understanding that how preparing these units is going to be beneficial for you, right, in scoring more marks in the exam. Now this question 2015 is asking you the various problems which we can address if we are adopting quasi experimental design. You definitely need to know what design is. So it is a combination of direct plus applied. You need to know the applications also, कहाँ use कर सकते हैं, किन problems को resolve कर सकते हैं. So it is direct plus applied. What kind of research conditions does a factor analysis become necessary? It is a typical direct theoretical question. When you talk about non-experimental designs, are these more relevant? एंड ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर आपको पता है नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस क्या है, कैसे काम करती हैं, कब उनको यूज़ किया जाता है, देन इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन. कुछ नहीं है इसके अंदर नया या स्पेशल जो आपको आंसर करना है. नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइकोलॉजिकल रिसर्च. ऑब्वियसली इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन. बस एग्जाम्पल्स ऐड करना है. आई विल नॉट कॉल एग्जाम्पल्स एज एप्लीकेशन. जहाँ वो एप्लीकेशन पूछ रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं तब हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पर एप्लीकेशन पूछी गई है, ये अप्लाइड क्वेश्चन है. This is a direct question for you. How can confounding variables invalidate the apparent result of an experiment? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर आपको पता है confounding variables क्या होते हैं, आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो एंड बहुत ही अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स के साथ आंसर कर सकते हो. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वाला भी. आगे बढ़ रही हूँ. अगला क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. एग्जैक्टली बुक से उठाकर आंसर्स में लिखा जा सकता है. इवैल्यूएट इंटरव्यू एज अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन. फोकस ग्रुप डिस्कशन, ये तो पता होना चाहिए, इतना पार्ट डायरेक्ट है, मगर इसको प्रेजेंट करना है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या एग्जाम्पल के थ्रू. लेट मी जस्ट पुट इट. ये एक एग्जाम्पल उन्होंने खुद से दे दी कि मेरे को इस सिनारियो में एफजीडी यूज करनी है, कैसे करके बताओगे, वो दिखाना है आपको. तो ये डेफिनेटली एक डायरेक्ट प्लस अप्लाइड क्वेश्चन मैं बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैसे काम करता है पता होना चाहिए. एवरी स्टेप ऑफ इट यू आर गोइंग टू अप्लाई विद दिस एग्जाम्पल एंड देन यू आर गोइंग टू एलाबोरेट. अगला क्वेश्चन, रिसर्च डिजाइन, वुड यू अप्लाई टू प्रूव दैट अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग.
yields best result. I'll call it an applied question, क्योंकि यहाँ पे कोई specific research design बोला नहीं है. They are checking and testing your knowledge. तुमको सारी research designs पता होनी चाहिए, and from that you should be able to pick an appropriate research design and then explain that research design, how you are going to use it to assess these, teaching methods or teaching methods, which one is best. So it is an applied question. This is testing your overall knowledge. Next question, principle of random assignment, experimenter effects, demand characteristics, and how can you minimize it. ये देख के क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है, 20 मार्क्स का है, पता नहीं क्या क्या लगता है लोगों को, पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है. ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इंडिविजुअली डिस्कस करके लास्ट में आपको बताना है दैट व्हाट आर दी स्टेप्स वी आर टेकिंग एज रिसर्चर्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट. एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट और डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट कैन बी डन दैट टू अ गुड डिग्री. अगर आप देखो तो आंसर क्वेश्चंस में छुपा हुआ है. वी डू यूज सिंगल ब्लाइंड एंड डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स फॉर दैट. Anyway, we'll discuss in depth in the classes. I hope you are understanding this. Now, when you talk about assumptions related to ANOVA, this is a direct question. There is no application here. It's simple and straightforward. Methods of sampling, it is a direct question. There is nothing which is applied here. It is only they have given you that in government social schemes में आपको impact evaluation करना है तो किस तरीके से करने वाले हो, एक एग्जाम्पल के साथ बताओ. बट इसमें कुछ अप्लाई नहीं है. अगर आपको पता है कि किस तरीके की सैम्पलिंग होती है, कौन सी अप्रोप्रिएट है, डेटा कलेक्शन कैसे कर सकते हो, यू कैन ईजिली आंसर. वो गवर्नमेंट सोशल स्कीम पूछे, वो ऑर्गेनाइजेशन में पूछे, वो एक लिमिटेड रीजन में पूछे कि एक सिटी के अंदर करना है या वो आपको ग्लोबली कलेक्ट करना है, कुछ भी बोल दे, डज नॉट मैटर. व्हेन यू नो योर कॉन्सेप्ट यू कैन आंसर इट as per whatever scenario is presented to you. That is the confidence you get when you know what you should be knowing. Next, diagnostic and prognostic researches are complementary to each other. You have to explain this with examples. देखो ये क्वेश्चन टेक्निकली तो डायरेक्ट में डाल सकते हैं, बट व्हेन इट वाज आस्क्ड बाय दैट टाइम ये लॉजिकल ही है, ठीक है ना. तो ये ज़्यादा डायरेक्ट है ना ये प्योरली अप्लाइड है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है क्योंकि हम साइकोलॉजी में आज सच ज़्यादातर डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक रिसर्चेस इतना यूज़ नहीं करते हैं. वी आर यूजिंग डिफरेंट रिसर्च डिजाइंस. ये मेडिकल साइड पर ज़्यादा यूज़ होती है. दे हैव कनेक्टेड इट हियर एंड दे हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन. तो जहाँ भाई जिसने भी यहाँ पे लॉजिक लगा दिया वो इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता था या कर सकता है आगे भी जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो इसको आप डायरेक्ट में ले सकते हो, पर अगर लॉजिक लगा पाओगे तभी डायरेक्ट में भी लिख सकते हो. पर हैं पॉइंट्स बहुत ही सिंपल, 2-4 पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है. रोल ऑफ हाइपोथेसिस इन साइकोलॉजिकल रिसर्चेस विद सूटेबल एग्जांपल्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है. डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्ट है. इवैल्यूएट द एप्लीकेशंस, इवन ये भी डायरेक्ट है, कुछ उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं है. एप्लीकेशंस बतानी है बट आपको खुद से कहीं अप्लाइड क्वेश्चन नहीं दे रहे कि इसी पर्टिकुलर जगह बताओ, इसको करेंगे तो कौन कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ कौन से एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ करते हैं, कुछ ऐसा नहीं पूछ रहे. सिंपल पूछे भाई एक्सपेरिमेंटल कौन से एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है, फिर हमारे को कंपेयर करके बता दो और बता दो उसकी क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ करते हैं. अब जब भी बता रहे हो कहाँ यूज़ करें तो ऑफकोर्स यू शुड बी टेलिंग दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इट और व्हाई इट इज़ अ बेटर डिज़ाइन. क्योंकि रिसर्चर हमेशा एक बेटर डिज़ाइन के साथ ही काम करना चाहेगा. वाई वुड हम क्यों बैठ के कोई बेकार डिज़ाइन के साथ काम करेंगे जब हम रिसर्च में इतना माथा पीछी कर रहे हैं, इतना मेहनत डाल रहे हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट बेसिक स्टफ. तो बेटर है तो बताओ कि क्यों बेटर है. अब 2 वे अनोवा की बात करते हो तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, पर ये वाले क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदल जाएगा. ऑल्दो 1 वे अनोवा एंड 2 वे अनोवा की जब आप अजम्पशंस पढ़ोगे आप उनको डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो, राइट. मगर यहाँ पे आंसर कैसे प्रेजेंट करना है दैट इज गोइंग टू डिफाइन वेदर यू आर गोइंग टू गेट रियली गुड मार्क्स और नॉट. तो क्वेश्चन डायरेक्ट है या बोल सकते हो एक हद तक अप्लाइड है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही प्रॉपर्ली एक अच्छे सोफिस्टिकेटेड तरीके से आंसर में प्रेजेंट करना है. लॉजिक बाय लॉजिक एक लेयर बनानी है आपको, तब लिखना है तो नंबर अच्छे मिलेंगे. एग्जाम्पल्स भी उसके साथ में ऐड करनी है. अगला आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, ये अगर आप देखो तो हम टेस्टिंग में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या टेस्ट कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा यूज़ करते हैं. यहाँ पे भी एप्टीट्यूड टेस्टिंग के साथ ही पूछा है मगर उन्होंने ये पेपर 1 में डाल के पूछा. व्हेन पीपल विल बी एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन पेपर 2, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. दैट इज अनदर रीजन दैट यू स्टडी ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स ऑल टुगेदर. सो व्हाटएवर इज आस्क्ड यू शुड बी एबल टू आंसर. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है. अब यहाँ पर व्हेन दे आर आस्किंग यू दैट हाउ यू कैन यूज दिस राइट इन द एडवांसमेंट ऑफ एरिया ऑफ एप्टीट्यूड टेस्टिंग, do not think it is very advanced question. It is still the direct question. The way it is making anything better, the same way it is going to make the aptitude testing advanced, nothing else. So you have to take those same base points and keep adding the example of aptitude testing. Again, when you understand, you will be able to present it in a much more sophisticated way. This is a direct question. Exploratory and confirmatory factor analysis, these are 2 types of factor analysis. Test construction में again paper 2 से paper 1 में पूछ लिया. Grounded theory approach, यहाँ पर this part you should know, which is direct. अब उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो हैप्पीनेस के लिए. देखो आई सिंपली पुट इट, और कुछ नहीं है. यहाँ पे भी एग्जांपल पूछा है, ठीक है. जब ये क्वेश्चन आया था एवरीबडी इज लाइक कि कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट तो हमने बुक्स में पढ़ा है, बट यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि हम आंसर ही नहीं कर सकते. हाउ विल यू डू इट फॉर हैप्पीनेस, हाउ विल यू डू इट फॉर दिस एंड दैट. मे बी देन व्हेन वी हैव रेड दीज थिंग्स वी हैव नॉट अंडरस्टूड हाउ टू रियली अप्लाई इट, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच यू डेफिनेटली हैव टू टेल व्हाट इट इज, हाउ एक्जैक्टली इट वर्क्स, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस फॉर अ ले पर्सन यू आर गोइंग टू डेफिनेटली टॉक अबाउट इट by taking happiness
is a concept in your mind. You have read a lot of theories, a lot of research studies for happiness in paper 1 and paper 2, right? So when you've studied that, you know what exactly happiness is like, but then you understand what is happiness for a common person. And we have a method, we have all the layers how we are actually coming out to that particular theory. तो वो theory की ही points आपको use कर करके यहाँ पर अपनी happiness जो lay person की definition है वो create करनी है. अगेन वही है, देखो कॉन्सेप्ट अगर आएगा, याद रखोगे तो लेयरिंग कर पाओगे, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जितना लगता है. अगर इस क्वेश्चन को या ऐसे कोई भी क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं, देन वी अगेन हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज टू स्कोर मोर मार्क्स इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स. अगला क्वेश्चन है, हाउ इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. यहाँ पर उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स एम्फेसिस डाल के एक्सप्लेन करनी है, ये भी डायरेक्ट पार्ट है. वेरियस अजम्पशंस, रिग्रेशन एनालिसिस, डायरेक्ट क्वेश्चन. अजम्पशंस प्री डिसाइडेड है, पहले से दी हुई है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया. स्टैंडर्डाइज एंड अनस्टैंडर्डाइज बीटा कोएफिशिएंट क्या है, एग्जांपल्स के साथ बताना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. आई हैव बीन प्रोवाइडिंग इट इन नोट्स. कोर्स के साथ में इसके भी सब, इन सभी चीज़ों के नोट्स मिल जाएंगे. यू विल बी एबल टू आंसर. बट एक चीज़ फिर भी याद रखना कि कोई चीज़ जैसे बीटा कोएफिशिएंट बहुत डिटेल में जाकर उन्होंने पूछ लिया, अगर नहीं भी आता, राइट, जैसे इस ईयर में 5 क्वेश्चंस पूछे, अगर बीटा कोएफिशिएंट नहीं भी आता तो हम बाकी क्वेश्चंस आंसर करने की कंडीशन में होनी चाहिए ना. आपको क्वासी एक्सपेरिमेंटल आना चाहिए ना, ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच आना चाहिए. ये एनालिसिस बहुत सिंपल है, एक्सप्लोरेटरी एंड कन्फर्मेटरी. अगर आएगा तभी तो आप आंसर्स में उन क्वेश्चंस को पिक करके अपनी लाइफ थोड़ा ईजी बना पाओगे. डिफिकल्ट से अगर बचना भी है तो बाकी मॉडरेट वाले क्वेश्चंस, मॉडरेट डिफिकल्टी के क्वेश्चंस तो हमको आने चाहिए. तो उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी इट रियली वेल सो दैट यू आर एबल टू स्कोर मोर मार्क्स. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंजेस ड्यूरिंग ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है. पेपर 1 में भी पढ़ते हैं, एंड पेपर 1 में इन द सेंस बाकी सिंपलर यूनिट्स में भी पढ़ते हैं, थिंकिंग में भी पढ़ते हैं, पेपर 2 की ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं. वी आर स्टडिंग इट मल्टीपल टाइम्स. यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस विदाउट एनी डिफिकल्टी. अब ये भी क्वेश्चन बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च कैसे डिफर करती है, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ईजिली आंसर किया जा सकता है. ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर डेफिनेटली इसको अप्लाइड बोल सकते हैं, क्योंकि आपको अगेन पूरे रिसर्च मेथड्स या डिजाइन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए टू एक्चुअली पिक द बेस्ट वन फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो दे आर गिविंग यू. सो दिस इज एन अप्लाइड क्वेश्चन. यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर आपको टेक्निकलिटी पता है तो आप यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करके बता सकते हो. रोल ऑफ हाइपोथेसिस, डायरेक्ट क्वेश्चन. सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल ब्लाइंड एंड डबल ब्लाइंड, डायरेक्ट क्वेश्चन. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, लेबोरेटरी बेस्ड ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन. डिट्टो ऐसे ही बुक से उठाकर अपने आंसर्स में लिख सकते हो. assumptions of ANOVA, डायरेक्ट क्वेश्चन. एप्लीकेशंस बतानी है साइकोलॉजिकल रिसर्च में एग्जांपल्स के साथ में, इट इज अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन. थोड़ा बहुत आपको एग्जांपल्स देने कि किस किस तरीके के हम साइट पर ANOVA को यूज कर सकते हैं. अगेन मेन कॉन्सेप्ट, जिस तरीके के assumptions हैं, जिस तरीके का क्राइटेरिया है, जहाँ 2 वे ANOVA फॉलो हो सकता है, जितने ग्रुप्स चाहिए, जब आप वो सारी टेक्निकल चीज़ें याद रखोगे उस हिसाब से एग्जाम्पल बनाना एंड फील्ड्स पिक करना बहुत ईजी हो जाता है. जहाँ नहीं है तो कोर्स में समझ के फिर हमारे लिए हम ईजी बना सकते हैं. अगला, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च. डिफरेंट कैसे है डायग्नोस्टिक से, डायरेक्ट क्वेश्चन. Research method is considered the backbone of any research. Discuss various steps to undertake psychological research for sound and reliable results. Direct question. Theory क्या होती है, पता है. हाइपोथेसिस क्या होती है, ये भी पता है. बहुत सारी हाइपोथेसिस आप अपने आंसर्स में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, पेपर 1 में इतनी सारी ऑलरेडी पढ़ रहे हो. यू नो व्हाट हाइपोथेसिस इज. ऑपरेशनल डेफिनेशन, for me it is very easy because any research just cannot start unless you have an operational definition for your variables. But for the students who are reading these things for the first time might find it difficult. So learning these things in classroom setting is really good, because when you're learning it from somebody who has done masters in psychology, who has that research experience, it is definitely going to be highly beneficial for all of you. अगला है, should the researcher always formulate a hypothesis before collecting data. कॉमन सेंस वाले में लोग बोलेंगे कि हाँ और क्या कैसे होगा, बट द टेक्निकलिटी विल टेल दैट नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट. हमेशा हम पहले से ही फॉर्मुलेट नहीं करते हैं. अब किन सिनेरियोज में पहले से फॉर्मुलेट नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, कब कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट इज अगेन टेक्निकल पार्ट. व्हेन यू अंडरस्टैंड यू विल बी एबल टू आंसर इट विद ग्रेट ईज. ऑल ऑफ दिस इज these are basics of research. You have to understand the types of researchers, you will understand all of these things. ये हम एक एक टेक्निकल पॉइंट जो बता रहे होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो आंसरिंग these questions is very simple and easy. Explain how a double blind experiment is used to overcome experimental bias. Direct question. This was also a direct one, right? Here independent, dependent, mediating factors, obviously direct question है. And describe data collection methods with reference to observation method, डायरेक्ट क्वेश्चन है. डिस्क्राइब करना है, कुछ एप्लीकेशंस नहीं पूछ रहे हैं. assumptions पूछेंगे सिंपल, फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन. इवन द मेन इफेक्ट एंड द इंटरेक्शन इफेक्ट इज डायरेक्ट. इट इज ऑल डिस्कस्ड इन क्लासेस. एवरीथिंग इज सुपर ईजी. डू इंश्योर that you prepare this unit really well, because जितना अच्छे तरीके से आप इसको प्रिपेयर करके जाओगे, आप उतने ही ज़्यादा अच्छे चांसेस अपने इंक्रीज कर रहे हो ज़्यादा स्कोर करने के लिए एग्जाम में. किसी को कहीं पे कोई डाउट हो, कोई हेल्प चाहिए हो, यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली. आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या यूपीएससी एप्टिकर ऐप के ऊपर मेरे को मैसेज कर सकते हो, वॉट एवर इज कन्वीनियंट, या कॉमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स डालो. ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.